चलिए, स्वागत है आप सभी का केस स्टडी नंबर 10 के इस सोल्यूशन वीडियो में। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। आज तो उसके बिना लेक्चर चालू ही नहीं होगा, कर दो फटाफट। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी, है ना। और आज कोई जोक नहीं है मेरे पास। वीडियो के स्टार्टिंग में सीधा जंप करते हैं अपना रिक्वायर्ड पार्ट पे, है ना। MCQs। Is the maximum depreciation allowable as per Income Tax Act 1961 calculated by Murari correct? If not, what is the maximum allowable depreciation as per the details given in issue 1? Income tax का depreciation calculation का simple सा question है, ठीक है। What is the amount of impairment loss which Sa Fashions Limited is required to transfer to statement of P&L and how the same should be allocated? Impairment का question है along with consolidation. Regarding the request of Mr. Buman to inspect the contract of service entered by company with Mr. Geet, MD, identify the incorrect statement out of the followings. Law का question है. Considering the facts in issue 4, is appointment of Hero as director of the company valid? वापस law का question. Is Sahana not required to comply with any provisions of Income Tax Act 1961 considering her individual tax returns are not subject to audit under the provisions of Income Tax Act 1961? DT का question है. MCQs हो गए, डिस्क्रिप्टिव पे आते हैं. सहाना इज इंट्रीग सर आपको अंग्रेजी नहीं आती क्या? Sahana is intrigued with the concept of impairment and wants to understand if an asset once impaired can be reversed. In this context, explain in brief the accounting for reversal and sources of information which indicates the reversal of impairment. ठीक है, impairment FR का question है. Sahana wants to know if her company missed some invoices while claiming GST ITC, till what time that ITC can be claimed. She believes the same may be taken till filing of GSTR 3B for the month of March of the concerned financial year. Is her view appropriate? GST का question है. The executive and non-executive directors have different roles and responsibilities. The responsibility of independent directors with reference to FR and approval as a part of audit committee requires special mention. Explain with examples. Law का question है. ठीक है, ठीक है सर, ठीक है. आइए पढ़ते हैं कहानी. कहानी सुनो. Sahana is a MBA graduate from IIM Bangalore. Sahana and her father incorporated a company, Sa Fashions Limited, to set up a boutique and chain of ready-made garment stores to support their family business of cotton and yarn mills. ठीक है. She was able to manage the accounting and taxation part of her business by herself in the initial stages. Considering the business expansion, she was evaluating to hire a professional consultant who would support in the business matters, including taxation and accounting. She reached to her old friend Madan, a practicing chartered accountant, to seek his help in accounting and compliance matters relating to the company. Madan set up his own proprietorship firm and has been in practice specializing in audit and taxation since last 10 years. When Sahana contacted Madan for professional help, he was more than glad to help her. अच्छा प्यार की राह देव सर आज बहुत जोक्स मार रहे हो, सॉरी. They made up at a coffee shop to discuss the details of the engagement. During the during the conversation, Madan tells her the times have changed and so have the works of presenting the accounts of any business as per financial reporting framework. He explains how the preparation of financial statements is now regularized in such a way where all financial statements shall have consistency, uniformity across the industry with few exceptions. Example, specially regulated financial statements. In addition, the users of these financial statements who would also have assurance of complying with the basic framework. He also gives an overview of the latest changes in the income tax and GST which could have an impact on her business. After a detailed conversation of accounting and taxation aspects, he asks Sahana to brief him about her business and issues she is facing. The meeting gets more formal as Sahana calls Murari accountant working in her company in the meeting. काटो काटो सब फालतू फालतू इंफॉर्मेशन है, काटो. क्या करेंगे हम जान के भाई, यहां से काम बताओ ना. Sahana explains the following open issues to Madan. Issue number 1. Sahana opines that Murari is not computing the depreciation on plant and machinery appropriately. WDV दिया है opening, new plant and machinery, computer acquired, dates पे ध्यान देना. क्यों? half rate, full rate. कौन सी मशीन क्वालिफाइड है एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए? ये दो. एज पर मुरारीज वर्किंग्स द टोटल डेप्रिसिएशन on machinery at 15% comes to 8.7 lakhs and on computer 40% comes to 1.2 lakhs.
फर्स्ट एमसीक्यू में हमको इनको करेक्ट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके देना है, ठीक है, दे देंगे। इश्यू 2, ऑन 1st April 2022 Saha Fashions Limited acquired 100% of Spun Limited for 5 lakhs, which was into cotton spinning business. The fair value of net identifiable assets of Spun Limited was 4.5 lakhs and goodwill was 0.5 lakhs. On 31st March 2024, government changed its policy on textile sector, having an adverse impact on the business of companies like Spun Limited. Internal discussion on government policies indicates that the revenue of Spun Limited is estimated to fall by 20% in the coming 3 to 5 years. The adverse impact on marketplace and strict regulatory conditions indicate impairment. As a result, Spun Limited has to estimate the recoverable amount of the goodwill and net assets as on 31st March 2024. Acquisition कब हुआ था? 1st April 22 और impairment check कब हो रहा है? 31st March 24. Saha Fashions Limited uses straight line depreciation. The useful life of Spun Limited's assets is estimated to be 15 years with no residual value. Further, no independent cash inflows are identified to any individual assets. So the entire operation of Spun Limited is to be treated as a CGU. Due to regulatory entangle, it is not possible to determine the selling price of Spun Limited as a CGU. Value in use is 3.02 lakhs. तो वैल्यू इन यूज दे दिया है, कैरिंग वैल्यू हमको निकालनी है, इम्पेयरमेंट निकालना है और देखना है फिर क्या होता है। Issue 3. Mr. Geet was appointed as a new managing director of the company on 5/10/2023 in place of Mr. Suresh. The company decided to pay remuneration to Geet as per section 197 subsection 4 of the Companies Act 2013. Mr. Baman, one of the members of the company, wanted to inspect the contract of service entered into by the company with Mr. Geet for assigning him the office of managing director, but was denied to have such inspection on the grounds of contract with Mr. Geet was not in writing. ठीक है। Company at the AGM held on 30th September 2021 appointed Ghana as non-executive director on the board of the company for a period of 3 years. On 2nd October 2021, Ghana met with an accident and died on spot. The board of directors of the company on 16th October 21 appointed Hero to fill the vacancy so created. Appointment of Hero was made for the term of 3 years by the board unconditionally. The next AGM is on 29th October. इसका भी MCQ था। Besides company-related matters, Sahana asks Madan to advise her in her individual tax matters too. She is planning to buy a residential flat on her own residence, which is priced as 48.50 lakhs. The person selling the flat, Rainbow, is an NRI as per the Rainbow क्या होता है? As per the provisions of Income Tax Act 1961, and he will be visiting to India to execute such deal. ये Rainbow US वाला होगा, उधर बहुत होता है ऐसे। After the title gets transferred, the flat will be renovated at a total cost of 60 lakhs approximately. Madan was quite astonished to know that the renovation cost is more than the purchase price of the flat. Sahana informed that she is purchasing the flat due to her father's emotional attachment. बहुत खराब चीज़ है ये. And with the locality and evaluating to finalize the contractor for the renovation to make the interiors as per her liking. Apparently, Murari informed her that there would be no compliance under Income Tax Act 1961 towards the flat purchased and the proposed renovation. Required part khatam, फटाफट पढ़ लो, and then we will move to MCQs. चलिए, आई होप आप लोगों ने ऊपर का पार्ट पढ़ लिया है। MCQ सॉल्व करता है। MCQ नंबर 1, नीचे आ जाइए सीधा। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, ऐसा बना देता हूँ, नॉर्मल और एडिशनल, ठीक है। अब ओपनिंग WDV 30 लाख है, इस पे 15% पे मिल जाएगा नॉर्मल, एडिशनल नहीं मिलेगा। न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेस्ड एंड पुट टू यूज ऑन 8th जून, 182 डेज से ज़्यादा है तो नॉर्मल 15% मिल जाएगा, और एडिशनल क्वालिफाई करता है 20% मिल जाएगा, ठीक है। न्यू प्लांट एंड मशीनरी अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ऑन 15 दिसंबर 23, लेस देन 182 डेज, तो इस पे 7.5% नॉर्मल और 10% एडिशनल मिल जाएगा। DT में आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है। मैं सीधा आपको कैलकुलेशन करा रहा हूँ। कंप्यूटर एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड ऑन 2 जनवरी 2024, इस पे 20% पे मिल जाएगा, क्यों? हाफ रेट है, तो कंप्यूटर्स पे रेट है वो 40% है, ठीक है। चलाओ कैलसी, चलो, और कैलसी लेके बैठा करो, ऐसा हरक पद उड़े के जैसे ऐसे ही बैठ मत जाओ। 30 × 15% एम प्लस 20 × 15% एम प्लस
8 into 7.5% M plus 3 into 20% M plus 8.7 नॉर्मल डेप्रिसिएशन आया एंड एडिशनल 20 का 20% M प्लस और 8 का 10% M प्लस 4.8 एडिशनल आया। तो टोटल कितना आएगा सर? 8.7 प्लस 4.8 13.5 lakhs इज माई करेक्ट डेप्रिसिएशन। आंसर देखें। 13.5 lakhs, तो यहाँ पे टिक मार दो 13.5 lakhs। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या था? What is the amount of impairment loss which Saha Fashions Limited is required to transfer to P&L and how the same should be allocated? यहाँ पे आ जाओ। मेरा फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट्स कितना था? 4.5 lakhs। अच्छा, जो मेरा यूजफुल लाइफ था वो था 15 years, नो रेसिडुअल वैल्यू। तो कैन आई से 1 April 22 को 4.5 lakhs का मेरा बुक वैल्यू होगा। 31/3/23 को मैंने कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। 31/3/24 तक भी मैंने कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, यहाँ पे इंपेयरमेंट चेक करना है। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया होगा? 4.5 डिवाइड बाई 15। क्यों? स्ट्रेट लाइन है और 15 ईयर्स मेरी यूजफुल लाइफ है। 4.5 डिवाइड बाई 15 0.3 0.3 यहाँ पे 0.3 यहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। तो मेरा बुक वैल्यू कितना आएगा सर? 3.9। या तो कैरिंग अमाउंट मेरा कितना आएगा सर? 3.9। कौन सी डेट पे? इस डेट पे। अच्छा, आप इंपेयरमेंट का स्टैंडर्ड पढ़ोगे या कंसोलिडेशन पढ़ोगे तब आप ये समझोगे कि जब गुडविल अलोकेबल नहीं होता इंडिविजुअल एसेट्स पे तो हम क्या करते हैं? पूरे सीजीयू में पूरी गुडविल को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे प्लस 0.5 जो गुडविल का कैरिंग अमाउंट है वो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4.4। अच्छा, इंपेयरमेंट क्या होता है सर? इंपेयरमेंट क्या होता है? कैरिंग अमाउंट माइनस नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर। नेट सेलिंग प्राइस दिया नहीं है, वैल्यू इन यूज दिया है। कितना सर? 3.02। तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना आएगा? कैरिंग अमाउंट 4.4 माइनस 3.02। 4.4 माइनस 3.02 1.38 का मेरा इंपेयरमेंट लॉस आएगा। ये जाएगा पीएनएल में। अच्छा, पीएनएल में जाएगा। इसका दूसरा इंपैक्ट कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में। कैसे आएगा? इस 1.38 लाख को सबसे पहले एग्जॉस्ट करेंगे हम गुडविल की वैल्यू से, तो गुडविल की वैल्यू हो जाएगी 0 और फिर बचा हुआ हम असेट की वैल्यू से एग्जॉस्ट करेंगे। तो मेरी गुडविल की कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगी? रिवाइज्ड 0 और मेरी अदर एसेट्स की कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगी सर? कितनी थी? 3.9। 3.9 माइनस 0.88 तो 3.02 मेरी अदर असेट्स की कैरिंग अमाउंट हो जाएगी विच इज इक्वल टू माई वैल्यू। बात समझ में आई? थोड़ा आपको ऊपर से गया ऐसा लगेगा बिकॉज आपको इंपेयरमेंट बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा तो ये समझ में आएगा। इसका मैंने आपको यहाँ पे सोल्यूशन बताया कैसे होता है, कैसे किया। सबसे पहले इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट किया, फिर उसको अलोकेट किया। कैलकुलेट करने में सबसे पहले चीज़ ये देखी कि ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब इंडिविजुअल असेट्स की गुडविल जब इंडिविजुअली अलोकेबल नहीं होता तो हम टोटालिटी पे इंपेयरमेंट चेक करके फिर अलोकेशन करते हैं। ठीक है। इंपेयरमेंट में आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में इस चीज़ को पढ़ोगे। एमसीक्यू नंबर 3, इसका आंसर टिक मार दे पहले। सबसे पहले 1.38 lakhs का लॉस आएगा एंड अलोकेटेड टू गुडविल एंड अदर एसेट्स प्रोपोर्शनेटली। ये नहीं आएगा, प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। क्या होगा? सेम शुड बी अलोकेटेड फर्स्ट टू गुडविल एंड बैलेंस टू अदर एसेट्स। डी। आपको भरोसा नहीं है तो डी। बात समझ में आई? ठीक है, इजी था। इंपेयरमेंट पढ़ लोगे फिर बहुत इजी लगेगा। अच्छा, बहुत सारे ग्रुप 2 सिर्फ दे रहे हैं, उनको एफआर के क्वेश्चन टफ लगेंगे। ठीक है। तो आई सजेस्ट कि आप इन सब चीज़ों के ये जो टॉपिक्स टचअप ऑन हो रहे हैं उसके यूट्यूब पे शॉर्ट रिविजन या ऐसा देख लो तो आपको आइडिया आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन उठ के एग्जाम में आ गया तो आपको डील करने में ईजी रहेगा। ठीक है। जो लोग सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं, जिनको एफआर एएफएम और ऑडिट नहीं पता, उनको एड्रेस करते हुए मैंने ये चीज़ बोली है। Regarding the request of Mr. Baman to inspect the contract of service entered by the company with Mr. Geet, MD, identify the incorrect statement. अच्छा, करेक्ट स्टेटमेंट मैं बता देता हूँ। ठीक है। ये लॉ का प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, इसमें मुझे कुछ समझाना नहीं है आपको। यहाँ देखो, the register of directors and KMP shall be kept open for inspection during business hours. The members shall have right to take extracts therefrom and copies thereof on request, and same shall be provided to them within 30 days with the
विथ विदाउट कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो मेंबर्स के पास राइट होता है क्या देखने का, केएमपी और डायरेक्टर्स के साथ जो अग्रीमेंट्स है उसको देखने का राइट होता है, कोई कॉस्ट इनकर उनको नहीं करनी होती है। किसको, जिसको वो कॉपीज चाहिए उनको। अच्छा, तो आप पढ़ते हैं क्या लिखा है। रिगार्डिंग द रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर बमन टू इंस्पेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंटर्ड बाय कंपनी विद मिस्टर गीत, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। सच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस शैल बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, ये करेक्ट है। मेंबर में इंस्पेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी, ये इनकरेक्ट है। मेंबर कैन इंस्पेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस विद एमडी और डब्ल्यूटीटी ओनली आफ्टर ऑथराइज बाय द आर्टिकल्स, ये भी गलत है। तो कौन सा इनकरेक्ट है, 2 एंड 3, ये दो इनकरेक्ट है, फर्स्ट वाला करेक्ट है। Considering the facts in issue 4, is appointment of Hero, a director of the company, valid? केस क्या था, यहाँ पे ध्यान दो। कंपनी ने एजीएम में डायरेक्टर को अपॉइंट किया, उसकी डेथ हो गई, तो उसकी ऑफिस में कैजुअल वैकेंसी आ गई, ठीक है। किया क्या बोर्ड ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ऑन 16 October 21 अपॉइंटेड हीरो टू फिल द कैजुअल वैकेंसी सो क्रिएटेड। अपॉइंटमेंट ऑफ हीरो वाज मेड फॉर टर्म ऑफ 3 years बाय द बोर्ड अनकंडीशनली। द नेक्स्ट एजीएम वाज हेल्ड एट 29 October 21। अच्छा, इस केस में बोर्ड के पास पावर है कि वो उस डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी को फिल कर सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसके बाद की जो मीटिंग होने वाली है एजीएम या ईजीएम, मेंबर्स को उसको अप्रूव करना पड़ेगा। और उसकी टर्म क्या होगी, जो ओरिजिनल डायरेक्टर की जो टर्म है उतनी ही टर्म होगी, 3 साल पूरे नहीं होंगे। जितनी ओरिजिनल डायरेक्टर की टर्म होगी उतने ही टर्म तक ये जो नया डायरेक्टर है जो उसके बदला है वो कंटिन्यू कर सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल 3 साल के लिए था, 6 महीने बाद उस डायरेक्टर की डेथ हो गई, तो बैलेंस पीरियड 2.5 years के लिए ही वो नया डायरेक्टर आएगा, और उसमें भी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा, ठीक है। बात समझ आई। Appointment of hero by BOD is not valid as it is against the provisions of Companies Act 2013 and he should have been appointed by members in EGM, ये गलत है। Is valid but should be approved by members in general meeting held on 29 October 21, ये अभी देखते हैं। Is valid the approval of shareholder not required, ये incorrect है। Is not valid, ये incorrect है, B ऑप्शन करेक्ट है। ओके, ये पूरा दिया है, पढ़ लेना बाद में, मैंने जो बताया है वही दिए, ठीक है। और लास्ट वन, is Sahana not required to comply with any provisions of Income Tax Act 1961 considering her individual tax returns are not subject to audit under the provisions of Income Tax Act 1961? अच्छा, केस क्या है, यहाँ पे ध्यान दो। सहाना मैडम एक फ्लैट एक्वायर कर रही है 48.5 lakhs में, किससे, एनआरआई से। अब ध्यान दो, सेक्शन 2 इसमें काम करती है, 194 IA 195, 194 IA 195। 194 IA इमूवेबल प्रॉपर्टी अक्वायर करने का सेक्शन क्या बोलता है, 1% ऑफ सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर पे 1% TDS काटना है, ठीक है। 1% ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन। अच्छा, 50 लाख के अंदर हो, 50 लाख के अंदर हो तो TDS काटने की जरूरत है नहीं, तो 194 IA में तो TDS नहीं कटेगा, क्यों, कंसिडरेशन 48.5 लाख है। लेकिन 195 में कटेगा, क्यों, बिकॉज मैं एनआरआई को पेमेंट कर रहा हूं, मैं एनआरआई को पेमेंट कर रहा हूं, इसलिए 194 IA में नहीं कटेगा, 195 में कटेगा। तो सबसे पहली चीज क्या हुई, 48.50 लाख पे 194 IA में TDS कटेगा। दूसरा, जो 60 लाख में पे करने वाला हूं, किसको, कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिनोवेशन, उस पे 194 C में TDS कटेगा। दो चीज आई, 3 सेक्शन आई, 194 IA, 195, 194 C। 194 IA रूल आउट हो गया बिकॉज जो कंसिडरेशन था वो 50 लाख से नीचे था, लेकिन 195 एक्ट 195 सेक्शन आ गया, क्यों, एनआरआई को पेमेंट करना था, और 194 C आया, क्यों, कॉन्ट्रैक्टर को रिनोवेशन के लिए पैसे देने, ठीक है, सिंपल है। TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिटेक्टेड अंडर सेक्शन 194 IA, गलत, 195 पे कटेगा, एंड ऑल्सो TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिटेक्टेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट वर्क, ये ऑप्शन सही लग रहा है। नॉट रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 195 गलत है, नॉट रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 194 IA अभी तक ठीक है, ऑन द अमाउंट ऑफ परचेज इज लेस देन 50 lakhs एंड नो TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिटेक्टेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट वर्क, ये गलत है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे आ जाओ, बात समझ आई। यहाँ पे मैंने आपको इसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, सॉरी, ठीक है, मैं लिख के दे दूंगा आपको, टेलीग्राम में शेयर हो जाएगा, ठीक है। MCQs हो गए बातों बातों में, सिंपल से MCQs थे, ठीक है। 2 कैलकुलेशन के थे और 2 लॉ के थे, उसमें एक में कुछ समझाने जैसा था नहीं, एक में थोड़ा कंसेप्चुअल था, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला और TDS वाला, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। दो चीजें पूछी, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द अकाउंटिंग फॉर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इंडिकेट्स द रिवर्सल ऑफ लॉस, ठीक है। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट का ज्ञान सुन लो फटाफट से, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट।
या आप एफआर में पढ़ते ही हो, बट एक बार मेरी तसल्ली के लिए अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च 2021 को मैंने कोई असेट परचेस की जिसका कैरिंग वैल्यू 100 रुपीज है, यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है और एसएलएम फॉलो करते हैं, ठीक है, एसएलएम फॉलो करते हैं। तो 31 मार्च 2022 को इसका कैरिंग वैल्यू कितना होगा सर? 90, 10 का डेप्रिसिएशन। 31 मार्च 2023 को कितना होगा? 80, 10 का डेप्रिसिएशन। 31 मार्च 2024 को कितना होगा? 70, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च 2024 को मैंने इम्पेयरमेंट चेक किया और 40 रुपीज का इम्पेयरमेंट है, 40 रुपीज का फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा रिवाइज कैरिंग वैल्यू कितना होगा सर? 30। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना होगा सर? 30। अब 31 मार्च 2025 को मैं कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा? देखो, 1 साल बीत गया, 2 साल, 3 साल, 3 साल में मैंने 3 साल बीत गए, अब बचे कितने सर? 7 साल। ऐसे करते हैं, ठीक है। अब 7 साल बचे हैं, तो 30 रुपए को मैं 7 साल में डिवाइड करके अमोर्टाइज करूंगा, तो मेरा 31 मार्च 2025 मतलब 24-25 का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 4.29। ये तो डेप्रिसिएशन है। तो 31 मार्च 2025 को कैरिंग वैल्यू कितना होगा? 30 माइनस 4.29, 25.71। अब 31 मार्च 2025 को मैंने वापस चेक किया कि इंपेयरमेंट का कोई लॉस रिवर्स हो सकता है या नहीं। तो मैंने ऐसा देखा कि हाँ, इसमें से इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल हो सकता है, लेकिन कितना, इस पे ध्यान देना सर। अगर ये इंपेयरमेंट लॉस मैंने प्रोवाइड किया ही ना होता, अगर मैंने इंपेयरमेंट लॉस को प्रोवाइड किया ही ना होता, तो मेरी कैरिंग वैल्यू कितनी होगी सर? यहाँ पे 100 होती, 90 होती, 80, 70। 31 मार्च 2024 को 31 मार्च 2024 को कितनी होती? 70। 31 मार्च 2025 को कितनी होती? 60। 31 मार्च 2025 को कितनी होती सर? 60। 21 को 100, 22, 23, 24, 25 को 60 होती, हाँ। ओके, हाँ। तो अब मैं रिवर्सल कितना कर सकता हूँ इम्पेयरमेंट लॉस का? इतना, 60 माइनस 25.71, ओनली 34.29 का मैं इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स कर सकता हूँ, ना कि पूरा 40, ना कि पूरा 40। ये बोलता है आपका स्टैंडर्ड। सर ऐसा क्यों है? बिकॉज ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे 40 को ऐड बैक कर देता हूँ, मतलब रिवर्स कर देता हूँ, तो मेरा कैरिंग वैल्यू कितना हो जाता सर? 65.71, 65.71। इम्पेयरमेंट एक बार प्रोवाइड किया, उसको रिवर्स किया, वो जो अमाउंट आ रहा है, जो कैरिंग अमाउंट आ रहा है, वो नॉर्मल डिप्रिसिएशन वाली अमाउंट से भी ज्यादा है। पॉसिबल ही नहीं है, नहीं तो मजे मजे हो जाएंगे। क्यों? एक साल मैंने इम्पेयरमेंट दिया, दूसरे साल रिवर्स कर दिया, फिर कैरिंग वैल्यू बढ़ा दी। अगर ऐसा ही होता तो मजे मजे हो जाएंगे सबके। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप इतना ही अपना इम्पेयरमेंट है वो रिवर्स कर पाओगे, ठीक है। इसी बात को आपको इंग्लिश में लिखना है, यहाँ पे ध्यान दो। Increased carrying amount of asset other than goodwill attributable to reversal of impairment shall not exceed carrying amount that would have been determined had no impairment was ever provided in the previous years। इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैंने असेट को पहले रिवैल्यू किया था, तो उसका इम्पेयरमेंट भी मैं ओसीआई में बुक करूंगा। क्यों? क्योंकि उसका गेन था, वो ओसीआई में बुक किया था, तो उसका इम्पेयरमेंट भी ओसीआई में। अच्छा, कोई रिवैल्यूएशन नहीं था तो डेप्रिसिएशन होगा, पीएनएल में जा रहा है तो इम्पेयरमेंट भी पीएनएल में। मतलब जहां जहां मेन असेट के जो कंपोनेंट्स है वो अकाउंट फॉर हो रहे हैं, वहां वहां ही इम्पेयरमेंट अकाउंट फॉर होगा। जहां जहां तू, वहां वहां इम्पेयरमेंट, जहां जहां असेट, वहां वहां इम्पेयरमेंट, ठीक है। यही चीज आपको इंग्लिश में लिखनी है। अच्छा, इंडिकेशन फॉर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। यहाँ पे दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या है भाई? मार्केट में प्राइस बढ़ गया, किसका? असेट का, तो नेट सेलिंग प्राइस बढ़ गया, ठीक है। सिग्निफिकेंट चेंजेस विद फेवरेबल इफेक्ट ऑन द एंटिटी हैव बीन टेकन प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड और विल टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर इन द टेक्नोलॉजिकल, मार्केट और इकोनॉमिकल और लीगल इन्वायरमेंट विच इन विच एंटिटी ऑपरेट्स और इन द मार्केट इन विच असेट इज डेडिकेटेड। तो वैल्यू इन यूज बढ़ गया भाई। मार्केट में एक्सटर्नली ऐसा कोई इंपैक्ट आया जिसपे मुझ पे फेवरेबल इंपैक्ट आ रहा है, तो वैल्यू इन यूज बढ़ जाएगा। मार्केट इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस आया जिससे मुझ पे फेवरेबल इंपैक्ट आ रहा है। अच्छा, मार्केट इंटरेस्ट रेट्स का क्या काम? बिकॉज वैल्यू इन यूज डिस्काउंट होके आता है, फ्यूचर के कैश फ्लोस, उसको डिस्काउंट करो तो वैल्यू इन यूज आता है, तो वैल्यू इन यूज इज डिस्काउंटेड। तो मार्केट इंटरेस्ट रेट में अगर चेंजेस आएगा तो उस पर वैल्यू इन यूज पे भी इंपैक्ट आएगा, ठीक है। इंटरनल सोर्सेस क्या है भाई? असेट अच्छा परफॉर्म करने लगी, evidence is available from internal reporting that economic performance of asset is better than expected। दूसरा, इंटरनली मेरे
ऑपरेशंस एफिशिएंट हो गए, इंटरनली मेरे ऑपरेशंस जो है वो एफिशिएंट हो गए, जिससे वैल्यू इन यूज पे इंपैक्ट आ गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, इसको थोड़ा आपको याद करना पड़ता है, लेकिन क्वाइट लॉजिकल, आप 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। वैसे भी केस स्टडी के पेपर में तो आपको याद करना नहीं, याद करना है आपको एफआर के पेपर में, और एफआर के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आना लेस लाइकली, आ सकता है बट लेस लाइकली। ठीक है, Sahana wants to know if her company missed some invoices while claiming ITC. Till what time ITC can be claimed? She believes the same may be taken while filing GSTR 3B for the month of March for the concerned financial year. Is her view appropriate? नहीं, 30th November और एनुअल रिटर्न का डेट whichever is earlier पे आप इनवॉइसेस को क्लेम कर सकते हो। इसमें कुछ समझाना है? नहीं, टाइम लिमिट में मैं क्या समझाऊंगा? 30th day of November for following the financial year, or date of furnishing the relevant annual return, whichever is earlier. Claim is incorrect. Simple. थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, थियरी क्वेश्चन है दो, एक ही अच्छा क्वेश्चन था, वैसे तीनों ही थियरी क्वेश्चन थे बट एक अच्छा था जिसमें समझना था इम्पेयरमेंट का रिवर्सल, जिसमें समझना नहीं है। किसमें? 7 में। The executive and non-executive directors have different roles and responsibilities. The responsibility of independent directors with reference to financial reporting and approval as a part of an audit committee requires special mention. Explain with examples. एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में क्या फर्क होता है? एग्जीक्यूटिव मतलब जो डे टू डे ऑपरेशंस में कंपनी में पार्टिसिपेट करते हैं उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बोलते हैं। उसमें कौन आता है सर? एमडीडब्ल्यूटीडी मेरे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में आते हैं, और बाकी के सब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में आते हैं। उसमें नॉमिनी डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट, वो सब आ जाते हैं। अच्छा, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं वो पॉलिसी पे काम करते हैं, पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना या कंपनी की स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना, उस पे काम करते हैं, और एमडीडब्ल्यूटीडी उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा खासियत नॉन एग्जीक्यूटिव का ये है कि अगर कोई डिसीजन लिया कंपनी ने जिसमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कोई कंसेंट नहीं था, फॉर एग्जांपल किसी बोर्ड मीटिंग में कोई ऐसा डिसीजन लिया गया जिसमें मैं प्रेजेंट नहीं था, दूसरे लोगों की मेजोरिटी से वो डिसीजन ले लिया, तो उस डिसीजन के ऊपर की कोई भी लायबिलिटी मेरे ऊपर नहीं आएगी, बिकॉज आई हैव नॉट गिवन द कंसेंट फॉर दैट डिसीजन। ये पार्ट रेलेवेंट है। दे आर नॉट एज एक्टिव एज दैट ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड दे आर नॉट हेल्ड लायबल if they knowingly did not consent for a wrongful act। अब उसको उल्टा पढ़ रहा हूं, they are held liable only if they knowingly consented for wrongful acts। ठीक है, मैंने उल्टा पढ़ा और कुछ नहीं है। अच्छा, ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताइए, पढ़ना ही है। ठीक है, recommendation for appointment, remuneration and terms of appointment of auditor, review, monitor auditor's independence and performance, examine the financial statement and auditor's report, evaluation of IFC and risk management systems, valuation of undertakings or assets of the company wherever it is necessary, approval or subsequent modification to transactions of the company with related parties, उसमें audit committee का approval लगता है, scrutiny of inter-corporate loans and investments, monitoring and use of funds raised to IPOs and related matters। ठीक है, ये सिंपल थियरी क्वेश्चन है, किसके लिए? ऑडिट कमेटी के ड्यूटीज के लिए। ठीक है, इसमें मुझे कुछ समझाना नहीं था। ऑडिट कमेटी की क्या क्या ड्यूटीज होती है भाई? ऑडिटर का अपॉइंटमेंट देख लो, है ना, IFCFR देख लो, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अप्रूवल कर दो, वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग्स, अप्रूवल फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, स्क्रूटनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड मॉनिटरिंग द एंड यूज ऑफ फंड्स। ठीक है, इसमें याद ही करना था। और बेस्ट पार्ट यही है कि इस पेपर में कुछ याद करना है नहीं, सो यू कैन चिल आउट। आप बुक लेके जाओ, लिख लो, मजे करो, है ना। दिस वाज केस स्टडी 10। मिलते हैं अगली केस स्टडी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कितने बज रहे हैं रात के यार? रात के 3:15 बज रहे हैं, रात के 3 बज रहे हैं, अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दोपहर के नहीं है, रात के। ठीक है, चलो बाय।